رات کو 3 بار یا حی یا قیوم اس طرح پڑھ لو۔ صرف 2 منٹ کے وظیفے نے 2 گھنٹے میں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ 2 منٹ کے وظیفے نے آج مجھے کروڑپتی بنا دیا۔ آج میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے، آپ یقین مانو یا نہ مانو، اس وظیفے کو جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، راتوں رات میری زندگی بدل گئی۔ میں نے خود تو اس وظیفے کو کئی مرتبہ پڑھا ہے، لیکن اس وظیفے کو میں نے کچھ لوگوں کو وظیفہ بتایا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کہا ہے کہ میرا کام بن گیا۔ سمجھ لے کہ جس کو بتایا اس کا پیدا ہی ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے۔ تو ایسا وظیفہ آپ سوچ لے، آج کا رات کے وقت کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس کو بتایا اس کا بیڑا پار ہو گیا، مطلب اس کی زندگی بدل گئی۔ آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا میرے عزیز ساتھیوں میرے بہنوں، کہ آپ کی خالی جولی پوری طور پر پیسوں سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا کہ آپ کی جولی میں اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی۔ یہ رات دن اگر آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے بانٹو پھرو گے تو دولت آپ ختم نہیں کر سکتے، دولت آپ سے ختم نہیں ہو سکے گی۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دے گے۔ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہو تو بھی آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لو، قرضوں سے فوراً آپ کی جان چھوٹے گی۔ آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں مفلسی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پر وہ میرے بھائی اور میری بہنیں جو چند روپے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایک روپے کے لیے جو ترس رہی ہے، وہ لازمی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ کی اگر غیب سے مدد نہ ہو تو پھر مجھے کہہ دینا۔ آپ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہو کہ ہمیں وظیفہ بتاؤ، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ رات کو پڑھے صبح کام بن جائے، صبح پڑھے رات کو کام بن جائے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں کو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا، کئی ایسے میرے بہنیں میرے بھائی جو دنیا سے سمجھو تک گئے تھے، بالکل بیزار ہو گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہ بچا تھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جب ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو جب یہ وظیفہ دیا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ جب انہوں نے وظیفہ پڑھ کے مجھے بتایا، جب میں نے ان سے پوچھا ہمارے حالات جو پہلے تھے اور اب ہے، کچھ لوگوں کو ایک دن میں حالات بدلے، لوگوں کی 3 4 5 دن کے اندر حالات بدلے۔ ایک رات کا عمل کچھ لوگوں نے ابھی رات کو پڑھا اور صبح اٹھی ہی ان کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ غریب تھے، کروڑپتی بن گئے۔ تو ایسے ایسے میرے بھائیوں میرے بہنوں معجزات ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جب تک یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ یہ مجرب تسبیح، یہ مجرب وظیفہ آپ پڑھ لیں گے اور خود جو ہے وہ معجزات دیکھو گے، اور گھر میں اپنی زندگی میں آپ کی جب جیب بھری ہوئی ہوگی، میرے بھائیوں میرے بہنوں ہاتھ کے نوٹوں کی گڑیاں ہوگی، جب آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا، آپ لوگ اس وظیفے کو رات کو عشاء کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھ لو، چاہے آپ لوگ دنیا کی جس ملک میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، دنیا کی جس گاؤں، جس گلی، جس ملک، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہو، آپ لوگ کریں۔ آپ کے ملک میں جب عشاء کی نماز ہو جائے، آپ لوگ عشاء کی نماز کے فوراً بعد چاہے تو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا نماز پر بیٹھے بیٹھے، اور اگر چاہیے تو پوری رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا رات میں اس ٹائم پلا ٹائم پڑھنا ہے، نہیں، پوری رات میں جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، آپ لوگ اپنے گھر میں ہو، دکان میں ہو، رات کی اگر کسی بھائی بہن کے گھر کے باہر ڈیوٹی ہو، گھر میں وقت رات کو بھی ان کو نہ ملتا ہو، ویسے عموماً 80-90% لوگ تو جو ہے وہ رات کو اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں، دن میں ہی کام کرتے ہیں۔ ویسے کچھ ایسے ہیں جو بیچارے بھائی بہن جن کی رات کی ڈیوٹی بھی ہے، تو ایسا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ لوگ جہاں موجود ہو وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے میرے عزیز بھائیوں میرے بہنوں، ایک شرط ہے، پوری دل سے جہاں کہیں بھی یہ وظیفہ پڑھے،
किसी भी रात को पढ़े। अपनी ज़िंदगी में चाहे तो एक रात को पढ़ लें, चाहे तो हर रात को पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। रात के वक्त का ये वजीफ़ा एक रात पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप लोग हर रात को पढ़ना चाहें तो हर रात को भी पढ़ सकते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। रात को अपने घर में तमाम कामों से, तमाम मसाइल से, तमाम उलझनों से बिल्कुल फारिग हो जाए, 1 मिनट का वक्त निकाल लें, सुकून से किसी साइड में अलग से बैठ जाए, फ़ोन को अपने पास से हटा दे, बच्चों को थोड़ा सा जो है वो साइड में रख दे और सुकून से बैठकर जिस तरतीब से बताने लगा हूँ ये वजीफ़ा आपको उसी तरतीब से पढ़ लेना है। सबसे पहले मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माओ, भाइयों, बहनों, मर्द और ख़वातीन दोनों पढ़ेंगे। सुकून से बैठकर एक मरतबा सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक आपको पढ़ना आता हो, एक मरतबा अजीज़ साथियों, मेरे बहनों, बुज़ुर्गों, दुरूद पाक पढ़ के आपको ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा। अब जब वजीफ़ा बताने लगा हूँ तो आप लोगों को अगर वीडियो काटोगे और स्किप करोगे तो फिर मुझे शिकायत मत करना, वजीफ़ा असर न करे तो फिर मुझे मत कहना, क्योंकि आप लोग वीडियो काटते जाते हो कि हाँ हमें समझ आ गया हम पढ़ ले। नहीं, पूरा अमल आपको समझ जब आएगा, जब आप पूरी वीडियो देखोगे, पूरा अमल समझो पहले फिर करो, पैदा न हो तो फिर मुझे कहना। अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से एक नाम अल-क़य्यूम है। अल-क़य्यूम अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। अल-क़य्यूम का मतलब है सबको अपनी तदबीर से कायम रखने वाला। इस्तिग़नाए क़ल्ब व तक़वियत हाफिज़ा के लिए या क़य्यूम का विर्द इंतहाई मुजर्रब व मकबूल है। या क़य्यूम के वजीफ़े की बेशुमार फ़वाइद व तासीरात और फ़ज़ाइल है। या क़य्यूम के विर्द से इस्तिग़नाए क़ल्ब हासिल होता है। या क़य्यूम के विर्द से इस्तिग़नाए क़ल्ब हासिल होता है। क़ल्वत में या क़य्यूम का वजीफ़ा पढ़ने से इंसान अवराज़ नसियान से महफूज रहता है। या क़य्यूम का वजीफ़ा करने से हाफ़िज़ा कवी होता है और नूर क़ल्ब पैदा हो जाता है। इसके विर्द से मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है। या हय्यु या क़य्यूम इन दोनों अस्माउल हुस्ना मुबारका का कसरत विर्द खैर व बरकत का बाइस है। सबसे पहले मेरे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपको ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। दुरूद पाक पढ़ लें, ये 2 वज़ाइफ मिला के पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद तीनों वज़ाइफ इतनी आसान कि कोई छोटा सा मासूम बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़ी ही आराम से पढ़ लेगा। बिल्कुल आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक बात, एक एक वजीफ़ा आपको पढ़ के भी बताऊंगा। जो मेरे भाई बहन बिल्कुल पढ़ना नहीं जानती वो भी मेरे साथ साथ पढ़ लें। मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपको पहले नंबर पर मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है बड़ा आसान सा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा है प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार पढ़े सबसे पहले, फिर दूसरी बार पढ़े। या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीसरी बार पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा आप लोग 11 मरतबा सबसे पहले पढ़ लेना। आप लोग जब पढ़ ले प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, तो उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपको वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा आपको शुरू से अपने स्क्रीन पर देख रहा है। इस वजीफ़े को तस्बीह पर अच्छी तरह काउंट करके आपको पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर अगर न पढ़ सके, तस्बीह मौजूद न हो उस वक्त आपके पास, तो ज़ुबानी या सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके पढ़ना शुरू कर दें। या हय्यु या क़य्यूम एक बार पढ़े,
फिर दूसरी बार पढ़े या हय्यु या क़य्यूम, फिर तीसरी बार पढ़े या हय्यु या क़य्यूम का वजीफा आपको आज के अमल में सेकंड नंबर पर पढ़ना है। इस वजीफे को आपको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है। 2 वज़ाइफ आपने पढ़ ली, उसके बाद आपको आखिरी वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को आपको पढ़ के भी बताऊंगा, बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। आज के अमल में सबसे आखिर में आपको यही वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को और जितनी भी वज़ाइफ है, जितनी क्वांटिटी में बताई गई है मेरे अजीज़ भाइयों मेरे बहनों, उतनी ही क्वांटिटी में पढ़ना, और एक कम या एक ज़्यादा हरगिज़ न हो। बिल्कुल जो तादाद बताई जा रही है उतनी ही तादाद में आपको पढ़ना है। आखिरी वजीफ़ा समझ लें किस तरह पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करते हुए या दुल जलाली वल इकराम एक बार पढ़े, फिर दूसरी बार पढ़े या दुल जलाली वल इकराम, फिर तीसरी बार पढ़े या दुल जलाली वल इकराम का वजीफा मेरे प्यारी प्यारे बहनों मेरे भाइयों, आज के अमल में सबसे आखिरी में आपको 41 मरतबा या दुल जलाली वल इकराम का वजीफा सबसे आखिर में आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक मरतबा जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक आखिर में पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगिएगा। जो हाजतें हो, जो परेशानियां हो, उनके लिए खूब दुआ मांग लीजिएगा। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स सूरी इल्म के रास्ते पर गामजन हो, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाएगा। फरिश्ते तालिब इल्म के काम से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। और आलमी दीन की फजीलत ये है कि उसके लिए ज़मीन व आसमान की हर शे मग़फ़िरत तलब करती है, हत्ता कि पानी में मछलियाँ भी। और आलिम के आबिद पर फजीलत ऐसे है जैसे चांद की सितारों पर फजीलत है। और उलमा अम्बिया के वारिस है, और बिलाशुबा अम्बिया की वरासत दरहम व दिनार नहीं बल्कि उनकी वरासत इल्म है। जिस शख्स ने उसे ले लिया उसने इसमें हिस्सा लिया। इसके हलाल खाने और नेक अमाल करने का हुक्म तमाम रसूलों को दिया गया। हर रसूल को उनके ज़माने में ये निदा फरमाई गई। पाक रसूलों को हुक्म दिया गया। हुक्म जिक्र करने का एक मकसद ये है कि रिज़्क़ हलाल और अमाल सालिहा नेकियों की अज़मत व अहमियत उजागर हो। दूसरी हिकमत ये है कि हर नबी अलैहिस्सलाम का अमल उसकी उम्मत के लिए नमूना होता है। यूँ जो उम्मत अपने नबी अलैहिस्सलाम के अमल यानी रिज़्क़ हलाल को निहायत अहमियत देने और नेकियों की तरफ से रुग़बत का मुशाहिदा करेगी तो उन अमाल में पैरवी करेगी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हुस्ना और इबादत रियाज़त के वाक़यात बयान किए जाए तो लोगों को बहुत तरग़ीब मिलती है। रिज़्क़ हलाल खाने का यही हुक्म अहले ईमान को भी दिया गया। चुनांचे इसी आयत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ के सिवा और किसी चीज़ को कबूल नहीं फरमाता। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वही हुक्म दिया जो रसूलों को हुक्म दिया था। चुनांचे रसूलों को फरमाया, ए रसूलों पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छा काम करो, बेशक मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। और अहले ईमान से फरमाया, ए ईमान वालो हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें खाओ, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।